Hello and welcome to Amit's Tuition Center. Today our topic of discussion is the numericals based on the chapter kinematics, and today we will solve these numericals by using graphical method. So here we are given a velocity time graph of a particle moving with some specific acceleration, and we have to calculate the maximum acceleration exerted by the particle. So before starting the numerical, the most important thing is that area under velocity time graph, it will give us the displacement covered by that particular particle or any object, whereas the slope of velocity time graph will give us acceleration. And because in this question, this particular question, as we have to calculate the maximum acceleration, so we will find the slope of this graph. And in this graph we have various lines, and we will find slope of each and every line. And thereafter the slope, the value of the slope of which line will be maximum, we will say that that particular particle exerts this much of maximum acceleration during its travel from point B, from this point to this point, particular point. So starting with the numerical, here we have line OA. The coordinates of point O is 0, 0, point A is 20, 20, point B के coordinates हैं 30, 20, point C के coordinates हैं 40, 60 and point D के coordinates हैं 70, 0. अब हमें वैल्यू निकालनी है स्लोप की ऑफ लाइन OA. देखिए जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन इज dv upon dt, चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम. अब क्योंकि जो वेलोसिटी है हमारी वो y एक्सिस पे है, तो हम चेंज इन वेलोसिटी देखेंगे फ्रॉम द y कोऑर्डिनेट्स एंड चेंज इन टाइम वी विल नोट इट डाउन फ्रॉम x एक्सिस. ठीक है. अब o लाइन OA की बात करें तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो होगा डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड O. देखिए पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 20 एंड पॉइंट O का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 0. सो डिफरेंस इज 20 माइनस 0. सिमिलरली क्योंकि ये पॉइंट 20 20 और ये 0 0 है तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस भी 20 माइनस 0 व्हिच मींस 20 ओवर 20. वी गेट हियर आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्केल. नाउ नेक्स्ट लाइन AB, पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट पॉइंट B का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 20 and point A का जो y coordinate है that is again 20 and जो time change है that will be 30 minus 20. So 20 minus 20 is 0. 0 over 10 we get here 0 meter per second. So slope of line BC now 60 minus 20 over 40 minus 30 which comes out to be 40 by 10 or we can say 4 meter per second scale. CD, slope of line CD 0 minus 60 over 70 minus 40. So here we get minus 60 over 30 that is minus 2 meter per second scale. अब जितनी भी लाइन की हमने स्लोप निकाली उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है that is 4 meter per second scale. So जो हमारी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम acceleration of the particle is equals to 4 meter per second square during its motion from point B to point C. Okay. अब इसी तरह हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही दिया हुआ है, but here we have to calculate the displacement made by the particle in 4 seconds. क्योंकि हमें सिर्फ 4 सेकंड तक का ग्राफ दिया है तो we have to calculate the displacement made by the particle in these 4 seconds. अब मैंने पहले बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट है that we will get from the area of velocity time graph. So क्योंकि ये जो ग्राफ है it is irregular shape, so इसे हमने एक रेगुलर शेप में डिवाइड किया जिसका हमें एरिया पता है. देखिए ये लाइन बनाई मैंने ड्रॉ की एक इमेजिनरी लाइन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट E, नेम दिया बस A B C D और उसके बाद ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस फ्रॉम दीस पॉइंट्स A B C D और जहां पे ज्वाइन करेंगे ये x एक्सिस को दो उनको हमने नाम
इसका आई पॉइंट का मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब ये अगर हम चेक करें एरिया फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए, ये जो हो गया दैट इज एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ओ ए ई। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ई। ओके, उसके बाद देखिए अब फिर ये तो लाइन होगी, इसको मैंने फिर एक पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट बी, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल ए बी एफ ई। सो इट विल बी प्लस एरिया रेक्टेंगल ए बी एफ ई। अब आगे आ जाए, ये स्लोप आ गई हमारे पास नीचे। अब हमने परपेंडिकुलर यहां से पॉइंट सी से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, लेकिन फिर भी अगर हम ये लाइन ना देखें, एक बार छोड़ दीजिए इसे, अगर ये भी देखें तो ये भी हमारे पास कोई रेगुलर शेप नहीं बनी, हमें इसका एरिया नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ऊपर वाला जो पार्ट है इट बिकम्स अ ट्रायंगल एंड द लोअर पार्ट बिकम्स रेक्टेंगल। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस पॉइंट को जो यहाँ पे पॉइंट आके मीट कर रहा है इसे मैंने पॉइंट नाम दिया आई। It will be area of triangle BCI, area of triangle BCI and plus area of rectangle ICGF plus area rectangle ICGF, और लास्ट में फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी आवर रेक्टेंगल CDHG, उसका भी एरिया हम प्लस कर देंगे CDHG। सो और क्योंकि हमारे पास कोई ग्राफ नहीं है, पूरा 4 सेकंड्स में हमने इसे एरिया कैलकुलेट एक रेगुलर शेप्स में इसे डिवाइड कर दिया जिसका हमें एरिया पता है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अब ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। रेक्टेंगल का है बेस इनटू हाइट, इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आई एम टेकिंग इट बेस एंड हाइट। एक्स एक्सिस जो हमारी वैल्यू होगी बेस, वाई एक्सिस पे डिफरेंस जो होगा हाइट, बेस इनटू हाइट प्लस अगेन हाफ इन ट्रायंगल का एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, अगेन रेक्टेंगल इट विल बी अगेन बेस इनटू हाइट प्लस एरिया CDHG that is rectangle because it is a rectangle, it will be again base into height। so देखिए हाफ बेस, अगर हम इसकी बात करें 0 to 1 तो डिफरेंस इज 1, therefore we get base is 1 and height, this point is given to us 20, therefore height is 20, ये वैल्यू पुट करते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सिमिलरली बेस क्योंकि फिर एक है सेकंड का डिफरेंस है तो बेस इज अगेन 1 इनटू हाइट इज अगेन 20। ओके, प्लस एरिया ट्रायंगल BCI बेस इनटू हाइट, बेस इज अगेन हाफ इनटू 1, और यहां पे जो हाइट है फ्रॉम पॉइंट I ये 10 है और जो मैक्सिमम है दैट इज 20, सो डिफरेंस इज 10, 20 minus 10 दैट इज 10। अब रेक्टेंगल ICGF, इसका भी बेस इनटू हाइट, बेस इज अगेन 1, हाइट इज नाउ हियर वी हैव 10 क्योंकि ये जो हमारी नेक्स्ट वन है ये 10 तक जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फिर रेक्टेंगल CDHG, इसके लिए भी फिर वही सेम होगा, बेस इज 1 एंड हाइट इज अगेन 10। सो अगर हम कैलकुलेट करें इसे, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी हाफ इनटू 20, दिस कम्स आउट टू बी 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 plus 20 30 35 45 55, so the displacement made by the particle in 4 seconds is 55 meter। सो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी होगी तो वी विल कैलकुलेट द एरिया अंडर दैट पर्टिकुलर ग्राफ, और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है सो वी विल कैलकुलेट द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दिस वाज टुडेस अबाउट आवर न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर काइनेमैटिक्स बेस्ड ऑन द ग्राफिकल मेथड। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज
लाइक करें, हमारे YouTube चैनल अमित ट्यूशन सेंटर को भी सब्सक्राइब करें और आप हमारे Facebook पेज और Instagram पेज अमित ट्यूशन सेंटर इसी नाम से उसे भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।